Hello friends, welcome to my channel Science Unearthed. Today my topic is chemical reactions part 2. In this part 2 we will discuss about chemical equations. Chemical equations, how to balance the chemical equations and how to write down the chemical equations. So we will discuss in detail. But please don't forget to like, share and subscribe to my channel. So in this video, we will discuss about chemical equations. But this topic is very big, so I have divided it into 3 parts. One part, the next video will be discussing the types of chemical reactions. So please watch this video, then you will get the complete information about the chemical reactions and equations. So let's start. Chemical reactions you have discussed in earlier video, but in this video we will discuss about chemical equations. How to write the chemical equations. ये chemical equations जो होती हैं, ये chemical equations किसी chemical reaction को show करती हैं. Suppose कोई chemical reaction किसी ने बताया हमें कि 2 elements हैं, उनके बीच में chemical reaction हो रहा है. As for example, one element is zinc and other is dilute sulfuric acid. तो किसी ने आपको ये बोला कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है. Then how will you write down this reaction in the form of chemical equations? So in this video we will discuss about the process of writing of chemical equations, balancing of chemical equations, and what are unbalanced equations. So you will get everything about the chemical equations. So please watch this video up to the end so that you can get the complete information. Now first I will tell you what is a chemical equation. If you see the definition of chemical equations, then the definition is method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is called as chemical equation. Now what are symbols and formula? ये जो मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताया था, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड dilute sulfuric acid. So in this, zinc is a metal. So the symbol of zinc is Zn. Zn is the symbol of zinc. And the formula of dilute sulfuric acid is H2SO4. So with the help of this symbol and its formula, we will write down the chemical equation of this chemical reaction. तो हमें किसी भी chemical equation को लिखने के लिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ just for revision कि chemical equation लिखने की हमें जरूरत क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है chemical equation लिखने की. अब कोई रिएक्शन है जैसे कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ, तो वो जो रिएक्शन है वो अगर आप किसी पैराग्राफ में लिखेंगे तो 7-8 लाइंस में आएगा वो, और वो एक सामने एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी. अब केमिकल इक्वेशन अगर हम उसी रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को देख के और एकदम से ये पता लग जाता है कि कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, किस किस रिएक्टेंट के बीच में हो रहा है और किन कंडीशंस में हो रहा है. तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल होती है किसी रिएक्शन को एट वंस एक शो करने के लिए. एक शॉर्ट मेथड इसका है.
तो ये मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved in it known as chemical reaction. अब इसमें जो सिंबल हुआ जिंक हो गया, फॉर्मूला आया उसमें H2SO4 आ गया. A chemical equation consists of a list of reactants on the left hand side, an arrow symbol, and a list of products in the chemical reaction on the right hand side. मैं इसको अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, then I will explain in detail. Now, in a chemical reaction, there are suppose the reaction which is on screen. So you can see that reaction zinc plus sulfuric acid is equal to zinc sulfate plus hydrogen. This is the chemical reaction. So somebody has told you now there is a reaction between zinc and sulfuric acid, and that person is saying that there is a reaction between zinc and sulfuric acid, and the products which are formed, they are zinc sulfate and hydrogen. Then you have to write down the chemical equation. So first we will write down a word equation. Word equation means words में उसी रिएक्शन को लिख देना. वर्ड इक्वेशन क्या कहलाता है कि जो रिएक्शन क्या रिएक्शन आपको लिखना है, रिएक्शन लिखना है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उससे जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है. अब आपको इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है. तो डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगी. पहला स्टेप होगा कि आप इसकी वर्ड इक्वेशन लिखें. वर्ड इक्वेशन वर्ड्स में लिख दो इसी बात को. तो वर्ड में हमने कैसे लिखा, जिंक लिखा, ये वर्ड हो गया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये वर्ड इक्वेशन हो गई. नाउ दिस इक्वेशन we will change it into chemical equation. हम इसी को अब केमिकल इक्वेशन में चेंज कर देंगे. तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपको एक रिएक्शन दिया गया कि रिएक्शन हो कौन से रिएक्टेंट्स के बीच में रहा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में. उसके बाद आपने उसकी वर्ड इक्वेशन बनाई, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अब हम इस वर्ड इक्वेशन को चेंज कर देंगे केमिकल इक्वेशन में. सो हाउ विल यू चेंज इट? फर्स्ट you will write down the symbols and formula. So the symbol of zinc is Zn. Formula of sulfuric acid is H2SO4. Formula of zinc sulfate which is formed in this reaction is ZnSO4, and hydrogen is also produced, so its molecular formula is H2. So we have collected all these symbols and formulas. Now in place of words we will write down the symbols and formula. सिंपल काम है. जो हमने पहले वर्ड इक्वेशन बनाई जिसमें वर्ड लिखे थे, जिंक लिखा था पहला वर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था, जिंक सल्फेट लिखा था, हाइड्रोजन लिखा, उनकी जगह पे आपको उनके सिंबल्स लिख देने हैं और फॉर्मूला. तो वो मैंने लिख के नीचे दिखाया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. जिंक वर्ड के नीचे Zn आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड के नीचे H2SO4 आ गया, और जिंक सल्फेट के नीचे जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आ गया, हाइड्रोजन के नीचे आ गया हाइड्रोजन का फॉर्मूला. Here the substances that react are called reactants. अब ये जो अभी तक बताया ये एक केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. आपको एक रिएक्शन दिया गया, उसकी आपने वर्ड इक्वेशन बनाई, उसके बाद वर्ड इक्वेशन में जो
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे थे उनके सिंबल और फॉर्मूले इकट्ठे करे और उन फॉर्मूला और सिंबल्स को उनकी प्लेस पे लिख दिया. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. सो if you see in this chemical reaction, zinc and sulfuric acid are known as reactants. जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, उनका एक खास नाम होता है और उन्हीं के बीच में रिएक्शन होता है. और जो राइट साइड में जो लिखे होते हैं, जैसे इसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है, तो वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इस रिएक्शन से बने हैं. सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन द reactants are written, and on the right side of the equation or reaction there are products. So in this equation products are zinc sulfate and hydrogen. Now balanced and unbalanced chemical equation. These are two types of equations. So first we will discuss about balanced equations. A balanced chemical equation is a chemical equation that has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. इसमें एक बात आप देखो, जो इक्वेशन लिखी हुई है रिएक्शन Zn plus H2SO4 equal to ZnSO4 plus H2. अगर लेफ्ट साइड देखें हम इस रिएक्शन की, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज 2. नंबर ऑफ सल्फर एटम is 1. On the left side, number of hydrogen atom is 2 and number of sulfur atom is 1 and number of oxygen atom is 4 and the number of zinc is 1 on the left side. So you will write down the numbers of all the elements. इसमें आप लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने कितने हैं, उनका नंबर क्या है, वो आप लिख लेंगे. तो वो हमने लिख लिया उसको. जिंक है 1, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है. अब उधर आते हैं, राइट साइड में जो प्रोडक्ट बना है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन. तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं इसमें उन्हीं एलिमेंट्स के नंबर्स आप काउंट करिए. जिंक 1 है, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 on the right side and oxygen is 4. So in this equation we will see that the number of all elements, they are not equal on both the sides. कौन सी sides? Reactant side और product side. इसमें equal नहीं है नंबर. कौन सी चीजों के equal नहीं है? Zn equal है और हाइड्रोजन इक्वल है, सल्फर इक्वल है. इसमें सल्फर इक्वल हो गया ZnSO4 प्लस H2. अब ये वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला वाला, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो दोनों साइड में जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, सेम. जो जितने इधर हैं उतने ही उधर हैं. सो दिस विल बी कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें इनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं. तो ये हमें देखना है कि जो एलिमेंट्स, जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें कौन से एलिमेंट हैं? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन. तो इनके जो एटम्स हैं उनका नंबर क्या दोनों साइड में इक्वल है? लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड. और अगर ऐसा है then this type of chemical reaction is known as balanced chemical equation.
So a balanced chemical equation is a chemical equation that has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. There is an equal number of atoms in the left and the right side of previously mentioned chemical equation. In reactants and products, atoms are equal. So this is a balanced chemical equation. Now we will see a different type that is called as unbalanced chemical equation. ऐसी chemical equation जो बैलेंस नहीं है. इसमें एक आप रिएक्शन ले लो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO. अब इसमें वही काम करेंगे जो पहले किया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टेंट्स की, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं. एन है एक तो नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन. तो इसके जो एटम्स हैं उनका नंबर लिख लेंगे. लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन है 2. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दे आर number of oxygen atom they are 2. Number of nitrogen atom in that is 2. So in reactants the number of nitrogen atom is 2 and the number of oxygen atom is 2. Now we will shift towards right side. राइट साइड है प्रोडक्ट वाली. तो प्रोडक्ट इसमें क्या बना है, इसमें बना है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO. अब इस प्रोडक्ट में देखेंगे कि एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर क्या है. इसमें N है 1 और O है 1. तो अब आप दोनों साइड को कंपेयर करो. लेफ्ट हैंड साइड में N का नंबर था 2 और राइट साइड में है N का नंबर 1. लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन O का नंबर था 2, राइट में O का नंबर है 1. तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नंबर दोनों साइड में इक्वल नहीं हैं. दे आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स. सो द number of elements towards the reactant side, they are not equal to the number of elements, number of atoms of elements on the right side or the product side. So this type of equation is called as unbalanced chemical equation, जिसमें एलिमेंट्स का नंबर लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही राइट साइड में नहीं है, तो उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं. इसमें केमिकल इक्वेशन में अनइक्वल नंबर है एटम्स का लेफ्ट और राइट साइड में. Hence this is an unbalanced equation, and unbalanced equation has an unequal masses of various elements because there is unequal number of atoms of reactants and products. अब इसमें एक चीज और आती है कि जैसे N है और O ये रिएक्टेंट हैं, तो इनके जो नंबर हैं एटम्स के वो तो हमने काउंट कर लिए. और अब ये एक एलिमेंट है तो इसका अपना मास भी होगा. तो जब नंबर ऑफ एटम्स इनके दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो इनके मासेस भी इक्वल नहीं होंगे. लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन का जो मास है वो राइट साइड में नाइट्रोजन के मास से इक्वल नहीं होगा. इसी तरह ऑक्सीजन का भी. तो व्हेन देयर इज unequal number of atoms on left and right side, then their masses will also be unequal. तो ये इसमें देखने वाली बात होगी. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. H2 plus O2 equal to H2O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का प्रिपरेशन. तो इसमें अगर आप काउंट करो तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, राइट में 2 हैं. लेफ्ट में ऑक्सीजन 2, राइट में ऑक्सीजन 1. तो दोनों तरफ जो एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर है दैट इज नॉट इक्वल. सो दिस इज अ
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें किसी का भी जो नंबर ऑफ एटम है दैट इज नॉट इक्वल। सो इफ वी वॉच दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे और राइट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसको देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन का 1 एटम डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म। मीन्स इफ वी वॉच दिस इक्वेशन, it looks as if one oxygen atom is destroyed in the chemical reaction। मतलब एक जो ऑक्सीजन का एटम है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम थे और राइट में एक ही है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है दैट one oxygen atom is completely destroyed in the chemical reaction. But it cannot happen because according to law of conservation of mass, there is one law of conservation of mass in chemistry. So according to that law, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसमें ये कहा गया है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं कि बिल्कुल नया कोई चीज कहीं पे एकदम नई क्रिएट हो गई, बन गई, और ना ही किसी एलिमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक कोई केमिकल एलिमेंट है तो वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, बट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction. So this is said in law of conservation of mass. So if we watch this equation H2 plus O2 equal to H2O, so it is seen that one oxygen atom is completely destroyed. It looks like, but in reality it can't happen. As I have discussed, there is a law of conservation of mass. So whole chemistry is based on this law of conservation of mass। कहीं भी कोई मैटर या कोई एलिमेंट, उसको हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं है किया गया। दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें जो अनइक्वल चीजें हैं, जैसा उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो राइट साइड में भी 2 होने चाहिए। सो वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन, वी विल do the equal number of all the elements। In other words, the number of types of atoms in reactants must be equal to the number of same type of atoms in the products। जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोला, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लेफ्ट साइड में जो भी एटम्स हैं उनका नंबर राइट साइड में जो एटम्स हैं उनके नंबर के इक्वल करना ही पड़ेगा, करना होगा। नाउ वी हैव टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। उनको हमें बराबर करना पड़ेगा, इक्वल। To make the number of different types of atoms equal in reactants and products is known as balancing of an chemical equation। अब इसमें ये ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसलिए हमें दोनों साइड्स के एटम्स को इक्वल करना होगा। और ये जो प्रोसेस है दोनों साइड के एटम्स को इक्वल करना, ये कहलाता है balancing of an chemical equation। This is called as balancing। Now the process in which the numbers of various types of atoms are made equal at both the sides of an equation is known as balancing of chemical equation। ये प्रोसेस बैलेंसिंग कहलाता है।
जिसमें हम दोनों साइड के जो एटम्स हैं उनको इक्वल करते हैं। अब इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में H2 plus O2 equal to H2O. You can see on the screen. In this reaction, reactants are H2 plus O2. These are the reactants. इसमें H atoms कितने हैं? 2 हैं और O atoms भी 2 हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स राइट साइड में देखो, प्रोडक्ट एक ही है H2O वाटर, उसमें H2 2 हैं और O एक है। It means the numbers are unequal on both the side. Means the number of atoms on the left side of the reaction, they are not equal to the number of atoms on the right side of the reaction or in the products. So here number of hydrogen atoms is equal on both the sides, but the number of oxygen atom on reactants and product sides are 2 and 1. They are not equal. So to have 2 oxygen atoms on the right side, we multiply H2O by 2. तो अब हमें राइट साइड में क्या करना है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स करने हैं। तो वो कैसे करेंगे? 2 एटम्स के H2O से पहले हम 2 ऐड कर देंगे, 2 लिख देंगे वहां पे। So write down 2 before H2O. So now you will see there are 2 atoms of oxygen on the right side, 2 atoms of oxygen on the left side, H2, H2O. So in this atoms 4, the number 4 is on the right side products, but on the left side H2 are 2. So H2 is unbalanced. H2 अभी भी unbalanced है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए H2 से पहले भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब जो इक्वेशन आई, इसमें अगर आप काउंट करो, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड इज 4, 2 into 2, and the number of oxygen is 2, but on the right side, in product side, the number of hydrogen atoms is 4 and the number of oxygen atom is 2. Now the above mentioned chemical reaction is said to be balanced. So this is the process how we make a chemical equation balance. Now how to make equations more informative. Informative का मतलब कि वो इक्वेशन ऐसी हो कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा उसको देख के इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये केमिकल इक्वेशन हमने ऐसे क्यों बनाई? जैसे एक हमने सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट लिया था कि जिंक का रिएक्शन था डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब कोई अगर इसको बताएगा वर्ड्स में तो वो बताएगा जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और उससे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनती है। लेकिन इसको एक ऐसे फॉर्म में लिख दिया गया कि आप एक लाइन में देख के समझ जाएंगे Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2O। सामने आ गया क्लियर कि क्या रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए और क्या प्रोडक्ट बना। तो केमिकल इक्वेशन से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है कि एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने आ जाता है शॉर्ट में कि क्या क्या चीज रिएक्शन में किस किस चीज ने पार्टिसिपेट किया और उससे क्या प्रोडक्ट बना, ये सामने आ जाता है। अब ये जो केमिकल वो है रिएक्शन, इसमें ये तो देख के पता लग रहा है कि कौन कौन सा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है और कौन कौन सा प्रोडक्ट उससे फॉर्म हुआ। लेकिन इसको अगर और इंफॉर्मेटिव बनाना हो, मतलब कि सिर्फ रिएक्शन को ही देख के आपको और इंफॉर्मेशंस मिल जाएं। और इंफॉर्मेशंस कौन सी? कि जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट में हैं। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में जो रिएक्टेंट्स हैं।
अच्छा, जो प्रोडक्ट बना तो वो कौन सी स्टेट में है? वो सॉलिड है कि लिक्विड है, एक्वस है कि गैसियस स्टेट में है? तो कोई ऐसा, अगर हम उसमें केमिकल रिएक्शन में हम ये कैसे शो करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं वो कौन सी स्टेट में हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन को या रिएक्शन को देख के पता लग जाए कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी स्टेट में हैं, वेदर दे आर इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सो हाउ विल यू राइट डाउन दिस? फर्स्ट, फॉर सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय एस, कैपिटल एस। मतलब कोई भी रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो उसके पास ब्रैकेट में एस लिख दिया जाएगा, कैपिटल एस, अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में है। और अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है तो उसका जहां फॉर्मूला होगा उसके आगे ब्रैकेट में एल लिख दिया जाएगा, एल मींस लिक्विड। if some reactant or product is in aqueous solution, what is the meaning of aqueous solution? Aqueous solution is the solution in water. किसी भी चीज का वाटर में एक सॉल्यूशन बना हुआ वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, और उसके लिए ब्रैकेट में लिख दिया जाता है AQ, aqueous. If any reactant is in gaseous state, as for example hydrogen, वो पहले आपने रिएक्शंस में देखा, तो उसमें जो है H2 जो होगा मॉलिक्यूल उसका, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे G, स्मॉल g, इट मींस गैसियस स्टेट। तो अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में सामने ही ये लिख दें कि कौन सी चीज सॉलिड स्टेट में है, कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है, कौन सा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, या कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है, तो उससे क्या होगा कि सारी पिक्चर सामने होगी, क्लियर। रिएक्शन कौन सा हो रहा है, किन एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, और कौन सी जो चीजें हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो किस स्टेट में है वो भी पता लग जाएगा। अब आप एक इक्वेशन ये देखिए, Zn plus H2SO4 equal to ZnSO4 plus H2. You can see it on screen. So Zn within brackets S. S is written for solid. It means Zn is in solid state. Plus H2SO4 within bracket AQ. AQ means aqueous. Aqueous means the solution in water, because H2SO4 is dilute. So how it is diluted? H2SO4 is mixed with water. So this is the solution, aqueous solution of sulfuric acid. Now on the right side, ZnSO4, this is aqueous, means a solution in water, plus H2, this is in gaseous form. So to see this equation, we can find out each and every information about the state of the reactants and products. ये एक चीज हो गई कि अगर आप स्टेट लिख देते हैं, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है, so it will give the complete information about the state of participants in a chemical reaction. Now, second is to indicate the heat changes in the equation. In some reactions, heat is absorbed, heat is taken. After taking the heat, the reaction proceeds. So, this is one type of reaction. In some other reactions, heat is given out after the reaction. So these are the two type of reactions. इसको मैं वैसे भी आपको बता दूं, वो किसी आगे के किसी चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये जो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं,
एक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, बाहर से ली जाती है और तब वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। तो जो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। This is the name for that reaction. And the reaction in which heat is given out, it means after the reaction, heat comes out. So that type of reaction is known as exothermic reaction, जिसमें heat बाहर निकलती है। तो अब ये जो दो तरह के रिएक्शंस हो गए, तो इसमें हीट चेंजेस को हम कैसे शो करेंगे केमिकल रिएक्शन में? So we can write down one equation like this, means KClO3, and this delta, which is triangular in shape, this is written over this arrow. एरो के ऊपर एक डेल्टा, एक ट्राइंगल जैसा एक साइन बना है ना, वो डेल्टा कहलाता है। एंड दिस इज द साइन ऑफ हीट। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये पोटेशियम क्लोरेट कहलाता है KClO3। तो ये सॉलिड स्टेट में है, एक तो ये इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी इसमें पता लग गया। एंड जस्ट बिलो द एरो MnO2 is written. MnO2 is manganese dioxide. This works as a catalyst. What is catalyst? We will study in some other chapter this, but in short I am telling you that catalyst is a chemical substance which increases the speed of the reaction. अब ये जो KClO3 है सॉलिड स्टेट में, इसको हीट किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, और इसीलिए उसके एरो के ऊपर डेल्टा एक साइन लगा दिया। उस साइन को देखते ही हम सब पहचान जाएंगे कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। उसके नीचे लिखा है MnO2, ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। उसके बाद इसमें बना KCl, पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, ब्रैकेट में लिखा है। ऑक्सीजन बनी, वो गैसियस स्टेट में है, ये भी हमें क्लियर पता लग गया। तो इससे क्या है कि अगर हम ये वाली जो चीजें हैं तो उनको अगर हम इक्वेशन के में ही लिख देंगे ऊपर इन शॉर्ट, तो एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें आप पूरी तरह से हर तरीके से उसमें हर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, रिएक्टेंट्स की स्टेट क्या है, वेदर दे आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, प्रोडक्ट्स की स्टेट क्या है, और जो हीट का एक्सचेंज है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन, वो दोनों इसमें दिखाए जा सकते हैं। ये डेल्टा साइन उसको ही शो कर रहा है, हीट को। और इवन इसमें कैटलिस्ट तक का पता लग गया कि कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें वर्क कर रहा है। तो एक जो केमिकल इक्वेशन है, दैट इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इफ इट इज रिटन प्रॉपरली विद ऑल दीज साइंस, जो कुछ भी इसमें होता है। नाउ in my next video I will discuss about the types of chemical reactions. This topic is very big, so I have divided into 3 parts. So the third part of my video will include the types of chemical reactions. Now you will see, when you will see that video, then this chapter will be completed. Now please share, like and subscribe to my channel, and don't forget to see my next video, because after watching that you will get the complete information about the chemical reactions and equations. वो complete हो जाएगा. So this is all for today. Thank you very much.